వక్ఫ్ బోర్డ్ తీసుకొచ్చారు పెద్ద మనిషి. సో అది ఎట్లా ఉంది అంటే బీజేపీ ఏమో ఈ ముస్లిం పేద ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది అంటుంది, కాంగ్రెస్ ఏమో జరగదు అంటుంది. అంటే దీంట్లో పెద్ద అవకతవకలు ఉన్నాయని చెప్తుంది. ఏది మంచిది మరి, మీరు ఏమనుకుంటారు అసలు? ఏది పార్టీ కాదు, బీజేపీ కాంగ్రెస్ అన్ని పార్టీ ఉన్నారు. ఎవరు ఏమి చేయరు. ఇప్పుడు వక్ఫ్ బోర్డు పాస్ చేసారు కదా, మీరు ఏమనుకుంటారు? మీకు మంచి జరుగుతుంది అనుకుంటారా లేకపోతే ఏమనుకుంటారు? ఓ అది పిఎంకి గొప్పం ఉంటాయి. అది హోమ్ మినిస్టర్కి ఉంది, పిఎంకి ఉంది. మనకి ఏముంది? పని చేయాలి, తినాలి నా మనకి. ఏ బిల్ తోటి మీకు సంబంధం లేదంటారా? ఏం కాదు మనకి. ఎట్లుంది రేవంత్ రెడ్డి పరిపాలన ఎట్లుంది? ఏం చేస్తారు రేవంత్ రెడ్డి? ఏం చేస్తారు? సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ ఏం చేస్తారు? ఎవరు कोई भी कुछ बोले तो सुन रहा होने। दुकान खोलते उनकी, राशन कार्ड दे दूँ बोला 26 जनवरी को, 6 दिसंबर उगादी को दे दूँ बोला राशन कार्ड दे रहा, चावल दे देके जाओ बोल के खा लिया. అయిపోయిందా? సన్న బియ్యం ఇస్తే అయిపోయిందా అని బియ్యంకి ఏమి దొరకదా? బియ్యమే తింటారా? ఏమరా వేయాలి ఆయనకి అందులో. ఏం తక్కువ అవుతుంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పరిపాలన మీకు? కాంగ్రెస్ పని అయిపోయింది అన్న, ఏం లేదు. కాంగ్రెస్ మీద లేదు, బీజేపీ మీద ఉంది. ఇది ఖాళీ భాషణ చేసి అయిపోయింది. అరే చెప్పాలి ఉంది, పని ఏమి కాదు. గ్యాస్ ఇస్తారు. 200 ఎవరికి ఇచ్చిండు? ఎవరికి ఇచ్చిండు? ఎవరు ఇచ్చిండు? భూమి అమ్ముకోవాలి, పని చేయాలి. ఏమి కాదన్న, పని చేయాలి, తినాలి. వస్తారు పోతారు. మీరు ఏం చెప్తారు? ఒక రాజకీయ నాయకుడికి మీరు ఒక డైలీ పని చేసుకుంటేనే మీ కడుపులోకి పోతుంది. సో గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు ఎలాంటి సహాయం జరగదు. మీరు రాజకీయ నాయకులకి ఏం చెప్తారు? మనకి గవర్నమెంట్లో ఏం ఫెసిలిటీ లేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఏమంటారు, మీరు జనాలు ఏం ఫ్రీగా ఇయ్యారు కదా, మేము డబ్బులు ఇస్తే ఓటు వేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళ వర్షన్ కూడా ఉంది కదా. అదే డబ్బులు ఇచ్చి ఓటే తీసుకొస్తే పని ఇట్లా చేస్తారు. పొడరా వస్తుంది, బల్లి వస్తుంది, పోలీసు వస్తుంది, బండి పెట్టుకుంటారా, తీసుకుపోతారా? ఏం ఎవరు ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఏమారా చెప్తారా? మీ ఎమ్మెల్యే వస్తారా? అన్ని సియాస ఏమి కాదు, గరీబులో ఏమి చేయరు అన్న. చెప్పండి అసలు మీరు ఏమనుకుంటారు, మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి, మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? वक्फ बोर्ड अभी जो बिल पास करे हैं वक्फ बोर्ड के लिए, ये बिल सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है. वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ. जब भी वक्फ की बात आई, इट्स गॉड्स लैंड, इट्स नोबडी, इज नॉट माय गवर्नमेंट, नो वन शुड इंटरफेयर इन इट. ये जो भी है ज़मीन वक्फ इज गिवन, इट्स वॉलेंटरीली गिवन. वो कोई इस पर कोई प्रेशर नहीं है. वक्फ जो भी करता मेरी प्रॉपर्टी है, आई हैव नो चिल्ड्रन, मेरे को कोई बच्चे वगैरह कुछ भी नहीं है. अगर मेरे को वक्फ करना है तो मेरी मर्ज़ी की बात है, वो मैं वक्फ कर दिया. वो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, इसमें ऐसा कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी. अब वो लोग के पास नंबर है, पावर में है, वो लोग बना दे रहे हैं. वैसा कुछ नहीं है. वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ. एक बार जो वक्फ हो गया वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए वक्फ ही रहता. सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स भी है इसके ऊपर. अभी देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट भी मूव करे हैं. అవి ఆగే जो भी क्या भी होगा देखा जाएगा. अभी तो బీజేపీ వాళ్ళు ఏమంటారు ముఖ్యంగా అంటే, ఇది కొంతమంది చేతులలో ఉంది వక్ఫ్ అనేది, సో పేద ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళ వర్షన్. नहीं, गरीबों को लाभ होने के लिए आप मैनेजमेंट में आप ऑलरेडी एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, जो भी माइनॉरिटी का है, जो आईएएस है, आईपीएस है, उसको ऐड करिए. आप ऑलरेडी रहते उसमें. आप देखिए वक्फ बोर्ड सीईओ जो भी रहता, एक आईपीएस रहता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता, लोकल बॉडी एमएलए रहता. एवरीबडी इज ऑलरेडी इन्वॉल्व. ये बिल ला के इसमें यू आर गिविंग मोर पावर्स टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आईएएस. ऑल द रिकॉर्ड्स आर ऑलरेडी विद द कलेक्टर. पूरे जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स रहते कलेक्टर के हाथ में रहते. अब वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ इज प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है. अब एनवायरमेंट लैंड है, एनवायरमेंट लैंड में आप के मुस्लिम को दे सकते हैं क्या? यू विल नॉट इन्वॉल्व बिकॉज ही एनवायरमेंट नॉट बिलोंग टू दी मेजॉरिटी. वेर एवर हिंदू टेम्पल्स आर देर, नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन दैट. वक्फ में आप जो है गरीब के लिए करना है तो आप मैनेज करिए चीज़ों को, जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर को इन्वॉल्व करके आप वो करिए. इसमें ऑलरेडी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता ही, लोकल जो भी है एमएलए रहता ही. अब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होने का ज़रूरत नहीं था इसमें. మీరు ఫైనల్గా మీరు ఏమనుకుంటారు? మీ అసలు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? అసలు పాస్ చేయడం వల్ల వచ్చే गवर्नमेंट है पॉलिटिकल, इससे टोटली पॉलिटिकल है. इसमें जो है आम आदमी तो यही होने का कि वक्त जो भी करेगा वो गरीब के लिए फ़ायदे के लिए ही है. वो कोई इसमें अमीर कोई फ़ायदा नहीं उठाता.
अब देखिए आप अनीजुल गुरबा है, उसमें पूरे यतीम लोग ही रहते हैं, वक्फ बोर्ड ही मैनेज करता, उसको माइनॉरिटीज ही करता, उसमें कोई नया आदमी आके कब्जा कर लेके जो भी, वैसा तो नहीं है कुछ भी। होगा 10% 5% होगा, नहीं बोल के नहीं, मगर आप टोटली ऐसा बिल ला के पूरे पावर्स कलेक्टर को दे देंगे तो ये तो अनफेयर ही है ना। तो अभी रेवंत रेड्डी का 15 रेवंत रेड्डी को तो हम वही बोलेंगे कि असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करिए, ये बिल को जो है लागू मत करिए, इसमें जो भी चेंजेस है आप वक्फ बोर्ड में ही चेंज करिए, आप कुछ ला के सेंट्रल से लॉ ला के इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड हैव रेजुलेट करिए आप जो भी करना है वक्त के हिसाब से, वक्फ बोर्ड में कुछ नया पैनल बनाइए या जो है लोकल बॉडी को इन्वॉल्व करिए। आप गवर्नमेंट इन्वॉल्व होना है तो आप एज ए मेंबर करिए, पूरा पावर्स जो है डिस्ट्रिक्ट, और वो लोग बोल रहे कि कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ऑलरेडी हाई कोर्ट में जो भी वक्फ ट्रिब्यूनल का आता, जो खुश नहीं है वो उसमें जाके चैलेंज करता, ये तो बात गलत है। तो रेवंत रेड्डी का परिपालन कैसा है? 16 मंथ्स हो गया, कैसा है तेलंगाना में? रेवंत रेड्डी अभी तो कुछ विजन उतना दिख के नहीं आ रहा, टाइम देना चाहिए, 2 इयर्स में क्या होगा, और 3 साल में हो जाता है। अब क्या होता देखेंगे, अब हम क्या बोलेंगे। अब कैसा लग रहा है? पहले अभी तो केसीआर था, केसीआर वॉज ए मूवमेंट लीडर, तो सेंटिमेंट्स था उनका। अब रेवंत रेड्डी क्या है, रूरल एरिया में ज़्यादा वो करे, अभी तो टाइम लगेगा वो लोग, कैसा है इधर 16 मंथ से? अभी टाइम लगेगा ना, 16 मंथ में तो कुछ होएगा नहीं, टाइम लगेगा उसके। वक्त के लिए ये है कि गरीब को कुछ भी फायदा नहीं है इससे। सो मिडिल क्लास जो भी है परेशानी है, मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं मिला वक्त से, समझ रहे हैं ना। कॉलेज है ना, स्कूल है गरीबों के लिए ना, कुछ यतीम खाना है, कुछ भी नहीं है गरीब के लिए। सो पैसे वाले के लिए बीजेपी చేస్తామంటుంది కదా। बीजेपी कभी मुसलमान का फ़ायदा नहीं करती। बीजेपी मुसलमान का ही फ़ायदा नहीं करती। अब इसके बाद क्रिश्चियंस का भी उठाती है, वो भी देख लो आप, क्रिश्चियन का भी जैसे उठाती, क्रिश्चियन के भी प्रॉपर्टियाँ ये वो जब्त करने की कोशिश करती इन्हें, मुसलमान के लिए बोल के नहीं, ये सबके लिए इन्हें ऐसी करती बीजेपी। हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है ये, खाली अपना ही चाह रही बीजेपी है, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को वो कर ले रही, ज़मीन खा जा रही दूसरे का, कुछ भी फ़ायदा नहीं है इससे, समझ रहे, और कुछ भी नहीं। थैंक यू। ఎట్లుంది రేవంత్ రెడ్డి గారి పరిపాలన? रेवंत रेड्डी, केसीआर अच्छा था रेवंत रेड्डी से तो। रेवंत रेड्डी क्या है, कारोबार नहीं, उन्हें बैठे जब से 2 साल थे कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं है। केसीआर था तो कारोबार अच्छा था, रेवंत रेड्डी रहने से पूरा घर तोड़ दे रहा गरीब का, क्या उन्हें कारोबार नहीं चल रहा, बस फ्री कर दिया। अब मैं टैक्सी गाड़ी चलाता हूँ, हाँ, अब मैं 2 महीने से बैठा हूँ, 2-3 महीने से बैठा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है। किराए का घर है अपना, उन्हें घर देता हूँ बोल के बोला, घर भी नहीं दिया, राशन करंट फ्री नहीं, और उन्हें घर कुछ भी नहीं दे रहा, वो कुछ भी नहीं है। 500 बोला गैस, वो भी नहीं दे रहा, समझ रहे, वो ने भी समझ रहे। हाँ, एमएलए भी सही नहीं है। एमएलए मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए, क्रिश्चियन के, किसी के लिए भी गरीब के लिए फ़ायदा नहीं है सर, समझ रहे, पूरों के लिए, गरीब के लिए परेशानी है सब, और समझ रहे, कुछ भी गरीब के लिए कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं करे सो है गवर्नमेंट ये। केसीआर फिर भी ठीक था, वो खाता था कुछ भी था, मगर गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाता था, वो कारोबार चलता था उससे। अब बैठे हुए सब बैठे हुए, हम ही ने हर कोई किसी का भी कारोबार ख़राब ही चल रहा है। उन्हें बैठे जब से घर तोड़ दे रहा गरीब को, हाइड्रा का पूरा घर तोड़ दे रहा है ना, वो गरीब का समंदर के पास है बोल के पूरा घर तोड़ दे रहा है, गरीब को पैदल कर देना, घर किसी को दे रहा है वो केसीआर बनाया, वो केसीआर के भी घर किसी को भी नहीं मिले, वो किसी को मिले 100 में से 10% मिले वो, और कुछ भी नहीं।